Good morning, everyone. Welcome to the video series of Artificial Intelligence. Today, we are going to discuss a very new topic, that is problem solving using searching. This is the unit number 2 of RTMNU syllabus. Problem solving in artificial intelligence may be characterized as a systematic search through a range of possible action in order to reach some predefined goal or a solution. In AI, problem solving by a searching techniques is quite common technique. In coming age of AI, it will be having a big impact on technologies of robotics and pathfinding. It also widely used in travel planning. This chapter contains a different search algorithm of AI in various applications. Let us look the concept of visualizing the algorithm. Hello, I am Mukesh Barapatre, your course faculty. I am here because I love to teach a technical topic. You can find me at mukeshbarapatre@gmail.com. So let's begin. In RTMNU syllabus or unit number 2 syllabus, that is problem solving using a searching, we must have a uninformed search strategies and informed search strategies. Basically, problem solving using a searching is divided into two parts. First one is uninformed search strategies and informed search strategies. So as per the we have a syllabus, that is uninformed search strategies. We have to learn about the BFS, that is breadth first search algorithm, depth first search algorithm, and we are going to compare both these algorithm one by one. In informed search strategies, we have a different informed search strategies: generate and test algorithm, hill climbing algorithm, steepest ascent hill climbing algorithm, the variant of hill climbing algorithm, best first search algorithm, A star algorithm. We also have a problem reduction problem, that is AO star algorithm problem. We also have a constraint satisfaction problem, that is crypt arithmetic problem, and mean and analysis. So this is the syllabus of problem solving using a searching. Okay. Search algorithm in artificial intelligence. Search algorithms are one of the most important areas of artificial intelligence. A search algorithm takes a problem as an input and returns the solution in the form of action sequence. Once the solution is found, the action it recommends can be carried out. This phase is called as execution phase. After formulating the goal and problem to solve, the agent sells a search procedure to solve it. आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिदम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पुराने वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट एआई टेक्निक्स कौन कौन सी अवेलेबल है। उन्हीं में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक यूज करने वाले हैं, दैट इज सर्चिंग। सर्चिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सर्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्चिंग अल्गोरिदम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे दो टाइप के सर्चिंग अल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस करना है। पहला है अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक और स्ट्रैटेजीज। दूसरा है हमारे पास में इन्फॉर्म्ड सर्चिंग स्ट्रैटेजीज। और कुछ छोटे टॉपिक्स है जैसे कि कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन हो गया या फिर प्रॉब्लम रिडक्शन हो गया, ये हमें स्टडी करना है इसी यूनिट के अंदर में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सर्चिंग के थ्रू ही आता है। जो कि हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें सर्चिंग एल्गोरिदम की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस की हुई थी, जैसे कि स्टेट पेस हो गया, स्टेट क्या होता है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट, ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम। पहली चीज, एल्गोरिदम भी एक टर्मिनोलॉजी ही है। नाउ एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम इज नथिंग अबाउट द सिस्टमैटिक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड टू गेट द आउटपुट। Searching algorithm terminologies. To search, searching is a step-by-step procedure to solve a search problem in a given search space. A search problem can have a three main factor. फर्स्ट वन इज सर्च स्पेस, स्टार्ट स्टेट एंड गोल स्टेट। पहले ही हमने ये प्रीवियस हमारे यूनिट में भी हमने इसको डिस्कस किया था स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के समय में।
पहला तो बता दूं सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द सर्च प्रॉब्लम इन अ गिवन सर्च स्पेस। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम स्पेस होगा उसमें हम सॉल्व करते हुए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अ सर्च प्रॉब्लम कैन हैव अ थ्री मेन फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज सर्च स्पेस। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अ सर्च स्पेस रिप्रेजेंट अ सेट्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हिच द सिस्टम मे हैव। जैसे कि जैसे कि हमने वाटर जग का प्रॉब्लम देखा था, तो वाटर जग के प्रॉब्लम में हमारे पास में जितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में जो स्टेट्स आई थी, दैट इज उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग ही जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आ रही थी वो हमारा एक सर्च पेज था। वहां पे हमारे पास में एक स्टार्टिंग स्टेट थी जो कि हम बोलते हैं स्टार्ट स्टेट। इट इज अ स्टार्ट स्टेट फ्रॉम वेयर एजेंट बिगिंस टू द सर्च। मतलब कोई भी एजेंट हो या कोई भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट इज रूट नोड। हमें स्टार्टिंग नोड हमें पता होना चाहिए, तो हमें स्टार्टिंग स्टेट पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट स्टेट। और हमें एक्चुअली सर्च तो करना होता है, हम स्टार्टिंग स्टेट से सर्च करने वाले होते हैं, बट क्या हमें एक स्पेसिफिक गोल भी चाहिए होता है जो कि हमें सोल्यूशन, हम जिसको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो गोल स्टेट इज अ फंक्शन विच ऑब्जर्व द करंट स्टेट एंड रिटर्न वेदर द गोल स्टेट इज अचीव और नॉट। मतलब हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे और हम गोल स्टेट को चेक करते रहेंगे कि ये क्या हमें जो भी स्टेट्स मिल रही है, जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में हमें जो स्टेट्स फाइंड आउट हो रही है, क्या वो गोल स्टेट है, क्या वो गोल स्टेट हमें अचीव हुई है या नहीं हुई है। ओके, सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। और कुछ और भी है जैसे कि सर्च ट्री। a tree representation of search problem is called a search tree. The root of search the tree is a root node which is corresponding to initial state. हमने प्रीवियसली वाटर जग का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो हमारे पास में जो स्टेट थी दैट इज 0 0। वो जो हमारे इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट थी दैट इज अ रूट नोड। और उससे हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेट्स हमने जनरेट किए थे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके। तो क्या हो रहा था, हमारा एक ट्री रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो रहा था। दैट इज नथिंग अबाउट द सर्च ट्री। एक्शंस, एक्शन क्या होता है, इट गिव्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल द अवेलेबल एक्शन टू द एजेंट। मतलब किसी भी स्टेट पे अगर हम कोई एक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें कोई एक न्यू स्टेट्स मिलेंगे, दैट इज नथिंग अबाउट द एक्शंस। पाथ कॉस्ट, इट इज अ फंक्शंस व्हिच असाइन अ न्यूमेरिक कॉस्ट टू अ ईच पाथ। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक स्टेट से हम कोई नेक्स्ट स्टेट में अगर हम मूव करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी होती है। तो वो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पाथ। सॉल्यूशन, the solution, it is an action sequence which leads from the start node to the goal state. solutions मतलब जो हमारा फाइनल गोल स्टेट हो सकता है वो गोल स्टेट होगा। एक और एक सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट मीन्स जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वो इनिशियल नोड से हमें जो गोल स्टेट तक के पहुंचने के लिए जो मिनिमम पाथ कॉस्ट जो लगी है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। दैट इज इफ द सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट कॉस्ट अमंग ऑल द सॉल्यूशंस। प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल हमें सॉल्यूशंस मिल जाए। हमने वाटर जग प्रॉब्लम के अंदर में दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। अब उनमें से हो सकता है कि कोई एक सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइम एक्स्ट्रा लगे या फिर हमें कॉस्ट स्पेस कॉस्ट एक्स्ट्रा लगे। तो दैट इज नथिंग अबाउट यूर द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। जो भी मिनिमम होगा वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च एल्गोरिदम। हाँ, एल्गोरिदम अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस। किसी एल्गोरिदम को हम सर्च करते हैं तो वो क्या मतलब कंप्लीट है या नहीं है। सर्च एल्गोरिदम इज सेड टू बी कंप्लीट इफ इट गारंटीज टू रिटर्न द सॉल्यूशंस। मतलब एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम के थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो और वो हमें गारंटी प्रोवाइड नहीं करता कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें हमें ऐसे एल्गोरिदम्स को चूज करना पड़ेगा जो कि कंप्लीट हो और हमें ये गारंटी प्रोवाइड करे कि इट रिटर्न्स अ सॉल्यूशंस इफ एटलीस्ट एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एनी रैंडम इनपुट। तो कोई भी हम रैंडम इनपुट करें तो हमें एक सॉल्यूशंस मिलना चाहिए, एक गारंटीड सॉल्यूशन मिलना चाहिए। Optimality. If the solution found for an algorithm is guaranteed to be the best solutions, the lowest path cost,
among all other solutions, then such a solution is said to be optimal solutions. मतलब किसी algorithm से क्या हमें optimal solutions find out हो सकता है और वो guarantee provide कर रहा है कि आपको optimal solution मिलता है, so that is called as optimality. थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर फॉर अ टाइम फॉर एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट इस टास्क. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय लगने वाला है उसको हम मेजर करेंगे. दैट इज नथिंग अबाउट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Space complexity, it is a maximum storage space required at any point during the search as the complexity of the problem. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कितनी स्पेस सिस्टम के अंदर में या मशीन के अंदर में एक्वायर करने वाले हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में. अगर हम अल्गोरिदम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें अल्गोरिदम के बारे में के साथ साथ में डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा. क्योंकि जब हम अल्गोरिदम यूज करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्टैक यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं, हम क्यू या फिर प्रायोरिटी क्यू, डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें हमारा जो भी सॉल्यूशन होता है या जो भी हमारा रूट नोड होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है वो स्टोर होती है. तो एक्चुअली होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे हार्ड डिस्क के अंदर में या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. तो कितना कोई एल्गोरिदम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कितनी मेमोरी रैम कितनी यूज होती है, उसको हम चेक करते हैं यूजिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. किसी भी एल्गोरिदम में ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज होती है. दैट इज फर्स्ट वन इज completeness, second one is optimality, third one is time complexity, and fourth one is space complexity. Okay, so now we are going to discuss types of search algorithm. Basically we have two types of searching algorithm: informed search strategies, that is also called as blind search. In blind search algorithm we have a breadth first search, डेप्थ फर्स्ट सर्च. ये जो स्ट्रैटेजीज होती है यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लगती है जिसको मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है. ऐसे स्ट्रैटेजीज को हम अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स बोलते हैं. इन्फॉर्म सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च. इन्फॉर्म सर्च टेक्निक में हमें यहाँ पे पता होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन आने वाला है वो किस डायरेक्शन में आने वाला है. मतलब हमें यहाँ पे पहले से पता होता, पहले से इंफॉर्मेशन है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है. सो दैट इज दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज इन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज. जनरेट एंड टेस्ट एक एल्गोरिदम होता है. बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है. हिल क्लाइंबिंग सर्च टेक्निक है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हिल क्लाइंबिंग एंड सिमुलेटेड एंडलिंग सर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में. एंड ए स्टार्ट सर्च. तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स है जो कि हमें इस आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करना है. ओके, सो दैट्स फ्रॉम टुडेज टॉपिक. थैंक यू.